Here, in order to understand the poverty as a concept in the social science or particularly in the economics, we have gone through the two different stories. Have you remember the story of the Ramsaran and the story of the Lakha? And what we have learned from there, look, the outcome of the case studies, the story of the Ramsaran and the Lakha. I request you to note down these notes on your notebook that will help you to understand not only the chapter but also to prepare about the NTSC, and more importantly that is the basic this is the basic things which help you to understand economics in the better way. Okay, the true story of the Ramsaran and the Lakha, what the outcome was there, both of them are the landless, दोनों ही के पास ज़मीन नहीं थी, they are unemployed or underemployed. Sometimes they have the work, other times they do not have, so they are unemployed or underemployed. Size of the family definitely is the worst. There is a prevalent electricity label in their families, asiksha thi. I cut the word agyanta. Agyanta is a different thing, that is called the asiksha. The poor health and the poor malnutritions they have, so they are under nutritions due to their socio-economic conditions. There is a child labor within their family, and end of the day we found they are the helplessness. So we have seen there is a different dimensions of the poverty, but now the question arises, as I started from the first and second video, how social scientists seen as a poverty. So these are the different dimensions, the different outcome of the two different story, the outcome of the two family, those who are very poor, we come to know these are the some symptoms which emerge between these families. बट द अगेन क्वेश्चन अराइज, हाउ सोशल साइंटिस्ट सी एज ए पॉवर्टी. जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो कैसे देखते हैं, लाइक द अभिजीत बैनर्जी, हाउ दे लुक्स इन ए डिफरेंट वे. सो what we have written there, this is the part of your book, nothing has been taken by me, everything is written on your book, so I am just explaining in a very simple way. Poverty seen by different indicators by the social scientists, एंड टू ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स आर, गरीबी को देखने के अलग अलग इंडिकेशंस है. दो जो परंपरागत अर्थशास्त्री जिनको देखते हैं, पहले से देखे आ रहे हैं, द फर्स्ट इज द इनकम एंड सेकंड इज द कंजम्पशंस. यू नो, इनकम मैंने आमदनी, कंजम्पशन मैंने उपभोग, यानी आप कितना कंज्यूम करते हैं, कितना खाते हैं. इफ़ यू हैव द इनकम डेफिनेटली यू आर द रिच, एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग गुड, अगर आप अच्छा कंज्यूम कर पा रहे हैं, अच्छा फूड इनटेक कर पा रहे हैं, डेफिनेटली यू आर इन द गुड. इन दीज कंडीशंस, the story of the Ramsaran and the Lakha, we have observed that their income level is extremely poor as well as the consumptions, because if you do not have the income, so how can you consume? So this is the traditional approach. Social scientists see poverty in these two indicators, and also in India we decided incomes. If you have a certain amount of the income, अगर आप इतने रुपए कमा रहे हैं पर डे या पर मंथली, तो आप अमीर हैं. अगर आप इतना कंजम्पशन करते हैं, कैलोरी कंजम्पशन, वी टॉक एक्सटेंसिवली इन द कमिंग डेज. हम आने वाले समय में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. But we have a series of the social scientists and economists like the Abhijit Banerjee and the Amartya Sen, predominantly Amartya Sen. They see poverty in a different way. We discuss later. But now poverty is looked through different social indicators. Apart from only income and the consumptions, वो कहते हैं कि गरीबी को हम इन चीज़ों को हम ऐसे देखते हैं. पहला, lack of general resistance due to malnutrition. अगर आपके अंदर रेसिस्टेंस पावर कम है, रेसिस्टेंस आपको पता है, कहा गया है कि कोरोना वायरस उनको ज़्यादा होगा जिनकी रेसिस्टेंस पावर कम होगी. इसीलिए दुनिया भर में कोरोना से डेथ होने वाले 60+ के लोग हैं, या ऑलरेडी जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो इनका क्या है, जनरल इनका रेसिस्टेंस कम होता है. क्यों रेसिस्टेंस कम होता है? डायबिटीज़ के कारण नहीं, टीबी के कारण नहीं, कैंसर के कारण नहीं, मैल न्यूट्रिशंस के कारण. ये कुपोषण है, इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता. अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कंजम्पशंस. नाउ मूविंग टू द सेकंड, इलिटरेसी लेवल. ये लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते. हमने क्लास चैप्टर सेकंड में पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स. इफ दे आर नॉट मच लिटरेट, सो हाउ कैन दे प्रोड्यूस बेटर और दे कंट्रीब्यूट इन द क्वालिटी प्रोडक्शंस. और यही बात हेल्थ वाले सवाल में, याद है आपको लास्ट चैप्टर, आपस में सब कनेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स में. थर्ड, लैक ऑफ हेल्थ केयर. सेम थिंग, टीबी वाला पेशेंट्स आपने देखा था, आपने आगे भी देखा था चैप्टर सेकंड में सकल वाले फैमिली के केस में. सो हेल्थ केयर फैसिलिटी इज नॉट गुड फॉर दीज फैमिलीज,
एंड द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब के अवसर इनके पास कम होते हैं, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. व्हेन आई से द ड्रिंकिंग वाटर, दैट मीन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. बेटा यू शुड रिमेंबर दिस, एंड वी हैव एक्सटेंसिवली डिस्कस इन द क्लासरूम एज वेल एज द मॉर्निंग असेंबली. 40% ऑफ द इंडियंस डू नॉट हैव द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक अलग चीज होती है, क्या होता है हमने डिस्कस किया है. तो 40% आबादी के पास तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. सैनिटेशन, टॉयलेट, साफ सफाई, अभी हम कह रहे थे उनके पास साबुन भी नहीं है. सो ये अलग अलग सोशल साइंटिस्ट इनको भी इंडिकेटर मानते हैं, इनकम और कंजम्पशन के अलावा, कि उनका रेजिस्टेंस पावर कैसी है, लिटरेसी लेवल क्या है, हेल्थ केयर कैसा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज और सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच डिटरमाइन समवन इज पुअर और नॉट. But there are two important concepts which your book highlighted, and particularly in the context of India also, we have to be understand this concept. Today I am left you with this concept only, the social exclusion, which I explained there. So there are two different concepts, the way social scientist looks. First is the social exclusion, second is the vulnerability. Social exclusion माने होता है सामाजिक रूप से अलग थलग होना, ठीक है, और दूसरा होता है वनरेबिलिटी, ये होता है कमजोर या जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है. ये दोनों चीज भी गरीबी डिसाइड करते हैं, ठीक है. तो पहले आज हम बात करेंगे अबाउट द सोशल एक्सक्लूजन. व्हाट इज द सोशल एक्सक्लूजन? In order to explain in order to understand the social exclusions, let's look at this picture. This is the group of the people. They are enjoying being the community life. They are living together. They are sharing happiness. They are sharing sorrow. They are sharing one other things, like the lockdown is going on. So if someone do not have the food, one can provide him. If someone do not have the water, then one can provide them. So they are living in the community. Human being as a community animal, so we need the community. But look at this boy. This red highlighted, he or she is alone. That called the social exclusions. Have you remember the case of the marginalization, what we study in the class 8 SST? I think you must remember. So that is the social exclusions, and understand how the social exclusion has related to the poverty. So the concept of the social scientists observe that social exclusion, one of the important cause as well as the consequences of the poverty. Look, poor live in a poor surrounding with poor people. गरीब लोग बेटा गरीब सराउंडिंग में रहते हैं, उनके अगल बगल में गरीब रहते हैं. झुग्गी झोपड़ी में सारे झुग्गी झोपड़ी वाले रहेंगे. सो दे कैन नॉट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर. वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे? उनके पड़ोस का बच्चा भी नहीं पढ़ता, उनके बगल के अंकल ड्रिंक करते हैं, उसके पड़ोस के अंकल के पापा भी और सब लोग ड्रिंक करते हैं. वो कहाँ से अच्छी इंस्पिरेशन लेगा? और विद द पुअर पीपल, उसके बगल में भी जो लोग हैं उनके पास भी कोई ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है. ये सराउंडिंग बड़ा मैटर करती है, ठीक है. तो एक तो ये है कि पुअर पीपल लिव इन द पुअर सराउंडिंग विद द पुअर पीपल. पुअर क्या होते हैं? एक्सक्लूड हो जाते हैं इस तरह से. किससे? सोशल इक्वलिटी. उनको समाज में बराबरी नहीं मिलती. यहाँ पे तो इस बच्चे को अलग दिखाया गया, लेकिन अगर ये गरीबों के बीच में रहता तो वैसे तो इसको इक्वलिटी नहीं मिल रही, इनको सोशल इक्वलिटी है, ये नहीं जा सकता. क्यों? अलग अलग कारण है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. और लेबल विद द बेटर ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग, ना अच्छे लोगों के पास जा सकता है, ना उसकी अच्छी सराउंडिंग है, तो ये क्राइसिस होता है. तो हम क्या देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी बुक से मैंने लिया है. सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कॉज एज वेल एज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द पॉवर्टी. अगर आप किसी को सामाजिक रूप से अलग थलग कर देते हैं, वो क्या है? कॉज मैंने कारण भी है गरीबी का, और गरीबी का परिणाम भी है. अगर आप किसी को अलग थलग कर दो, अमीर है तो वो गरीब हो जाएगा, और किसी को पहले ही आपने अलग थलग कर रखा है, सोशल एक्सक्लूजन कर रखा है, तो वो गरीब हो जाएगा. मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए ये एक बस्ती है, बड़ी हाईली बिल्डिंग्स है, यहाँ पे हॉस्पिटल का साइन बना हुआ है, यहाँ पे एक एनपीएस स्कूल्स है, ये अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, पार्क हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, बगल में स्कूल्स है, एजुकेशन है, पार्क है, ये लोग रहते हैं. लेकिन एक ये बस्ती है, ऐसे कच्चे से घर बने हुए हैं, ये लोग अलग थलग रहते हैं, यहाँ नहीं जा सकते. तो क्या होता है ना, दिस ग्रुप इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट एंड द फैसिलिटीज. ये हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा, एनपीएस उनको आने नहीं दे रहा है, क्योंकि कह रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ द फीस दो, आपके ड्रेस ऐसे होने चाहिए, आपके शूज ऐसे होने चाहिए, आप तो रैक पिकर्स हैं, आप तो कूड़ा उठाने वाले हैं, आपको नहीं आने देंगे. तो ये लोग ना स्कूल जा पाए, ना हॉस्पिटल जा पाए, ना ये लोग पार्क आ पाए. तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सोशल एक्सक्लूजन इज कोज मोर डैमेज देन द हैविंग इन अ लो इनकम. तो आपकी कम पैसे होने से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है सोशल एक्सक्लूजन. तो एग्जाम्पल ऑफ द सोशल एक्सक्लूजन है कास्ट सिस्टम्स. भारत में एक पर्टिकुलर कास्ट को एक साइड में धकेल दिया जाता है, जिसके कारण ये कम्युनिटीज़ क्या होती है, ये कम्युनिटीज़ कभी भी मेन स्ट्रीम के साथ नहीं मिल पाती है. तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, समाज में बराबरी रहने के अवसर, मैंने आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में, और हमने जब चैप्टर पढ़ा था मार्जिनलाइजेशंस, उसके बारे में, उसमें हमने ये चीज़ों को पढ़ा था. तो प्लीज़ आप इस सोशल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए. थैंक यू.